بس بس بس. بس بس بس. سلام جی روحی صاحب. سلام. آئیے آئیے ادھر آئیے. جی روحی، میں چاہتا ہوں جو بھی جائیداد خریدوں ان میں کوئی مسئلہ نہ ہو، سمجھے؟ آپ اطمینان رکھیں خان، تمام دکانیں شہر کے اسکوائر کے آس پاس ہی ہیں، زمینیں بھی سب شہر کی حدود میں آتی ہیں. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت میں کمیشن ایجنٹ اور رجسٹرار دونوں کا کردار ادا کیا ہے. البتہ بہت مہنگے اداکار ہو جی روحی. ہم ایک لقمہ روٹی اور پنیر پر بھی راضی ہیں خان. البتہ خون آلود روٹی پر. آپ اثر آنکھوں پر ہے خان، لیکن اس لڑکی کا مسئلہ خود دیلم خان نے کھڑا کیا. بکو مت، مجھے گدھا سمجھا ہوا ہے کیا؟ جاؤ خدا کا شکر کرو. جانتا ہوں مجھے بخشیں گے نہیں خان. ٹھیک ہے. ہاں امی. کس کے پکڑو. جی امی. سلام بیگم صاحبہ. علیکم سلام جی روحی صاحب. جی روحی، تم سے اور کوئی کام نہیں ہے، بس زمین خریدتے وقت اسے ضرور انجینئر کو دکھانا. انجینئر صاحب کو علم ہے خان، اور ہدایت کو بھی. چلتا ہوں میں. خدا حافظ. آپ جانتے ہیں کہ اس آدمی کو دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے. جتنا آپ سوچتی ہیں جی روحی کی اتنی غلطی نہیں ہے بیگم. یہ بندہ میرے بہت کام آتا ہے، میرا احسان مند ہے. قطعیون کے ماں باپ صرف آج ہی بھر کے مہمان ہیں، دن کے کھانے کے بعد چلے جائیں گے. بہتر ہے آپ ذرا کام کی چھٹی کر دیں. آپ نے سچ میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ ہاں بیٹی، تہران میں بہت کام ہے. میرا مطلب امریکہ سے ہے. ابھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے. معلوم ہے، ضرور جائیں گے. اس سرمایہ کے ساتھ. سلام جناب. سلام. خان نے کہا ہے کہ نیچے تشریف لے آئیں. تو آپ مخالف ہیں؟ میں بھی جانا چاہتی ہوں، لیکن پلاننگ کے ساتھ. ابو کہہ رہے ہیں کہ ان کے دوستوں نے لاس اینجلس میں سرمایہ کاری کی ہے. تمہارے باپ کو کیا ملے گا؟ تمہارے باپ کو خان جیسے سرمایہ کی ضرورت ہے. تمہیں پتہ ہے کس خزانے پر بیٹھی ہو؟ ذرا ہوشیار بنو. ہدایت سے کہو 2-4 زمینیں تمہارے نام کر دے. تم کچھ کر کیوں نہیں رہی ہو؟ تہران سے یہاں کچھ حاصل کرنے آئی ہو، نہ یہ کہ کنگال ہو کے واپس آ جاؤ. واپس آ جاؤں؟ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی نہیں. کیا واپس آنا طے نہیں پایا تھا؟ ہدایت خان کا اکلوتا بیٹا ہے، اس وقت بھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. میری فکر نہ کریں امی جان، خان کی تمام جائیداد ہدایت کو ملے گی، یعنی مجھے اور میرے بچوں کو. یہ سب باتیں میں جانتی ہوں، لیکن تمہیں خود کچھ کرنا ہوگا. میں تمہیں کھلے لفظوں میں بتا دوں، ہدایت اپنے دادا کی طرح قابل نہیں ہے.
बल्कि उसके उलट वो इंजीनियर खान जैसा है। सलाम अब्बू, सलाम। सलाम मेरी बेटी, सलाम सलाम। सलाम जनाब। सलाम तैमूर, आ जाओ अंदर चलें। हाँ मेरी जान। मैंने चंद साल पहले कहा था कि शाह का प्रोग्राम ये है कि खानों और रियाए के सिस्टम को ख़त्म कर दे। उस वक्त बहुत सौ को यकीन नहीं आ रहा था, जैसे मेरे मरहूम बेटे दैलम खान को। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे, खुदा गरीक रहमत करे। इन सालों में वो पहला शख्स था जो मेरी बात समझ गया, लेकिन दूसरों को अब समझ आ रही है। अब जब हुकूमत मजबूत हो गई है तो अपने प्रोग्रामों का निफाज चाहती है। इसीलिए शाह ने फैसला किया है कि इकबाल को हटाए और अलम को वजारत उज़्मा दे। आप जानते हैं कि अलम खुद भी खान और खानज़ादा है। वो खानों के साथ बेहतर तरीके से बातचीत कर सकता है। शाह अवाम के दिलों को जीतना चाहता है, समझता है कि खानों और रियाया के सिस्टम को ख़त्म करके आवाम के दिलों में जगह बना सकता है, लेकिन नहीं जानता कि ख़तरा किसी और जगह से है। किस जगह से खान? ओलमा। ओलमा का आपस में एक जुड़ा हुआ जंजीर नुमा सिस्टम है जो कि मसाजिद है। मेरे ख्याल में शाह उलमा की ताकत से गाफिल हो रहा है। खुदा हाफिज। खुदा बहुत हाफिज। खुशी हुई। अब किस लिए इतनी जल्दी जा रहे हैं जनाब? आज रात यहाँ रुकिए, आपके लिए एक मुफस्सल प्रोग्राम बनाया गया है। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत जहमत दे चुके हैं। आप भी तेहरान तशरीफ लाएं, हमें खिदमत का मौका दें। इंशाअल्लाह इसी साल इसफंदियार खान के साथ आएंगे आपके घर तेहरान। इसफंदियार? हाँ, तुम्हारा बेटा। चलिए बेगम साहब बैठिए। बच्चों, खेल बहुत हो गया, अब जाके सो जाओ। खान की बातें मुझे परेशान कर रही हैं। क्यों? वो मुझसे इसफंदियार मांग रहे हैं। अगर मुझे बेटा ना हुआ तो क्या होगा? मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो और कोई नहीं। लेकिन मैं डर रही हूं। जब तक मैं हूं, किसी चीज और किसी शख्स से नहीं डरता। क्या खान ने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की? दादा जान बूढ़े और थक गए हैं। उन्हें मुझसे सिर्फ काम चाहिए। वो चाहते हैं कि काम की बागडोर मैं संभालूं। आपने ही तो संभाली हुई है। देख तो रही हो, सारे कामों की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई है। खान सिर्फ निगरानी करते हैं और मुझे मशवरा देते हैं। इसीलिए हफ्ते में एक बार कर्नल के साथ उनके घर मीटिंग करते हैं। मैं और कर्नल जो बातें करते हैं उन्हें दफ्तरों में नहीं किया जा सकता। तो कर्नल को यहां क्यों नहीं बुलाते? इत्तेफाक से वो कल हमारे मेहमान हैं। कतायून मेरी तरफ देखो। तुम क्या सोच रही हो? बोलो, क्या मेरी सच्चाई पर शक कर रही हो? क्या तुम समझती हो कि मैं तुम पर सुरैया जैसी औरत को तरजीह दूंगा? मेरा मतलब सुरैया से नहीं था। मेरा मतलब आप नहीं थे। मुझे आप पर शक नहीं है।
जानती हूँ कि आप मेरा कितना ख्याल करते हैं। मुझे खान की फिक्र है। मेरे ख्याल में उनके इरादे जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं लगते। अपने बच्चे के अलावा किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें। सोगुल तैमूर को बुला लाओ, कहो मुझे काम है। जी बेगम साहिबा। बेगम बुला रही हैं। कोई बात है बेगम साहिबा? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की तैमूर? सोगुल से प्यार करते हो? मैं नहीं समझती कि तुम इतने शर्मीले होगे। जानती हूं कि तुम्हारा दिल सोगुल के पास है। उससे शादी करना चाहते हो? वो राजी नहीं है बेगम साहिबा। अगर मैं उसे राजी कर लूं तो? सारी उम्र आपका गुलाम रहूंगा। मुझे झूठ सुनना पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम खान के वफादार नौकर हो। हम नौकर हमेशा नौकर ही रहते। मेरे अब्बू खान के नौकर थे, माँ भी यही मरी। मैं भी नौकरी की आदत है। इतने सालों में मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा। आपके अलावा किसको मैं नजर आया? मुबारक हो तुम्हें। बेगम साहिबा, मेरा ख्याल है कि वो नहीं मानेगी। उसकी मर्जी थोड़ी चलेगी। मैं चाहता हूँ कि ये काम उसकी मर्जी से हो। मैं राजी कर लूंगी, बेफिक्र रहो। बस कुछ दिन उसके आसपास मत देखना। जी बेगम साहिबा। अम्मी आइए ना, जल्दी आइए। आई। बेगम साहिबा, आज मेहमान आएंगे। कर्नल और उनकी बेटी सुरैया। अच्छा, तो आपको बताने के लिए अर्ज किया मोहतरमा, ताकि आपके जहन में रहे। अम्मी आइए, आपको झूला झुलाएंगे। पर मैं कैसे झूलूंगी? आपके लिए नहीं, भाई के लिए कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन धीरे से। हाँ ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छी तरह तैयार कर लिया? हाँ बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जाओ अपने काम पर।
बंदूक तैयार है इंजीनियर साहब। वो गोलियां मिला के दो। जी साहब। मजदूरों से कहो कि आकर अपनी तनख्वाह ले जाएं। जी। सलाम जनाब। अलैकुम सलाम। मरजान से कहो आ जाए, बहुत देर हो गई। जी अच्छा। मैं नहीं जाऊंगी। सलाम। सलाम अब्बू सलाम जान। बेटे, गाड़ी पर स्केच नहीं डालना। रुबाबा आंटी बूढ़ी हो चुकी हैं, बच्चों को नहीं संभाल सकती। मैं भी थक गई हूँ। कतायुन बेगम की तरह नहीं हूँ कि 10-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरें। आप भी तो नहीं रहते, या तो कारखाने में होते हैं या खान के पास। मुझे किस चीज की फिक्र है और तुम्हें किस चीज की? तुम्हें किस चीज की फिक्र है मैं तो नहीं समझ सकी। मुस्तकबिल। आपका मुस्तकबिल भी हाल की तरह आपका अपना ही है। कभी भी घर पर नहीं होते। मैं होती हूँ और ये बच्चे। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? जाकर हिदायत के साथ शिकार खेलोगे ना? शायद तुम्हारे लिए हिरन का शिकार करूं। क्या बात है तैमूर? कर्नल साहब ने खान को पैगाम दिया है कि रात के खाने पर नहीं आएंगे। कल हिदायत गांव जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हारे अब्बू को भी साथ ले जाएं ताकि निकाह पढ़ा जाए। उसके बाद तैमूर से कहूंगी कि तुम्हें गांव ले जाके वलीमा दे। मैं अपने गांव लौट जाना चाहती हूँ। तैमूर के साथ चली जाओ। नहीं, मैं तैमूर के साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी अक्ल बहुत छोटी है लड़की। तैमूर को ऐसा मत समझो। उसका दिल तुमसे ज्यादा जवान है। जो कहोगी वो हाँ करेगा। मैं भी तो हूं ना। मेरी बात मानोगी तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे लिए एक बहन का हक अदा करूंगी। ऐसा कुछ करूंगी कि तुम खुश रहो। मुझ पर भरोसा है कि नहीं? भरोसा है बेगम साहिबा। तो मैं जो कहती हूँ वो करो। जी बेगम साहिबा। कोई करबला के सफर पर थोड़ी ही जा रहा है बेगम। जब भी मुझसे दूर जाता है मेरे दिल का एक टुकड़ा कटकर अलग हो जाता है। फिक्र ना करें दादी जान, कोई दूर तो जा नहीं रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। वापस आते हुए मूसा को भी अपने साथ ले आए। मूसा को? क्यों, क्या बात है? नेक काम का इरादा है। किस लिए? तैमूर,
तैमूर और सोगुल एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सच कह रही है तैमूर? सुनो, तुम्हें अगर शादी करनी थी तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं कुछ नहीं बोला खान, बेगम साहिबा खुद ही आगे बढ़ी हैं। इंशाल्लाह मुबारक हो। हिदायत बेटा, मूसा को भी साथ ले आना। जी अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल 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 चल। गुलबुत्ते आएगी तो मिल के पहाड़ पर जाएंगे और एक दूसरे का नाम पुकारेंगे। किस लिए? हमारी आवाज़ पहाड़ों से टकराएगी और पलट आएगी। बचपन से यही काम करते आए हैं, बहुत मज़ा आता है। सलाम चचा जान। सलाम। गुलबुत्ते कहाँ हैं? यहीं आ रही है, शाम को जल्दी वापस आ जाना। जी अच्छा। अरे ओ हाजरा, हाजरा हमारी बकरी को मार दिया। अंधे हो गए हो क्या? शिकार की जगह मेरी बकरी को मार दिया। सलाम खान। सलाम खान। सलाम इंजीनियर साहब, खुशामदीद। हम समझे पहाड़ी बकरी है, इसके बदले इनको भेड़ों में से एक भीड़ दे दो। माफ करना गुलाम रजा, तुम किसकी बेटी हो? आपके खादिम सोहराब की बेटी है। चलो शिकार का गोश्त भूनते हैं। रबाब क्या कर रही हैं? इस्फान की सैर। कैसे? साइट के जरिए। कौन सी साइट? जैसे देखूं मैं urdu.sehertv.ir। इसमें एक खास सेक्शन है जिसके जरिए हम ईरान भर के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर सकते हैं। देखिए यस भी है क्या? रुको, ये देखो, यस भी है, तस्वीर भी हैं, डिटेल्स भी हैं और बहुत कुछ है। और वीडियोस भी हैं। अरे वाह, वीडियोस भी हैं इसमें? बिल्कुल, वीडियोस भी हैं इसमें। आप कौन सी वीडियोस देख रहे हैं? सैर सपाटे की। और सैर सपाटे के अलावा भी और मौजूद है, जैसे कि स्पोर्ट्स। हाँ मैंने खोल लिया, ये देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स भी है। और ये देखिए नाम किसका आ रहा है? अरे रबाब, आपका नाम यहाँ क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो मेरा नाम भी यहाँ पर है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वीडियो सेंड की थी और मेरी वीडियो अपलोड हुई मेरे नाम के साथ। तो कैसे, क्या कोई खास वजह है वीडियो सेंड करने की? हर कोई जो है वो अपनी वीडियो भेज सकता है हमारी साइट पर। हमारी वीडियोस या नाज़रीन की वीडियोस है वो यहाँ पर अपलोड होंगी उनके नाम के साथ। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग हमें खुद रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, हम दूसरे की भी वीडियोस भेज सकते हैं। रिकॉर्डेड हो आपकी अपनी या डाउनलोड हो या वायरल वीडियोस आप भेज सकते हैं। खास तौर पर अनीस, पता है आपको 2021 की आपकी खास यादें, खास वीडियोस आप यहाँ पर भेज सकते हैं। अरे वाह, ये तो एक अच्छा सेगमेंट इन्होंने जो है इजाफा किया। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमारे नाज़रीन में बिल्कुल हमारी तरह अपनी वीडियोस हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। urdu.sehertv.ir हमारी साइट का एड्रेस है। और अपनी वीडियोस जो है वो अभी से ही जो है भेजना शुरू कर दीजिएगा और अपना नाम जो है वो ना भूलिए। मोहब्बत का इजहार करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत का इजहार करें तो हमें तस्वीर, वीडियोस, पैगामात भेजें। हमेशा सोमवार से जुमेरात तक इस प्रोग्राम में लाइव आपकी तस्वीर, वीडियोस, पैगामात और वो कहानियाँ हम शामिल करेंगे मोहब्बत के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में फ़ैमिली के मुख्तलिफ मौज़ूआत, माशरे के मुख्तलिफ मौज़ूआत और वो मौज़ूआत कि जिनका इंसान के ख़ानदान के ऊपर, इंसान के माशरे के ऊपर और इंसान के समाज के ऊपर असर होता है, उनके साथ हाज़िर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा।
کیا شکار ہے؟ بکری کا گوشت ہرن کے مزے کے ساتھ. میں نے کہا تھا نا پہاڑی بکری رک کے دیکھتی نہیں ہے. قسم سے اچھا نشانہ مارا. سلام عرض کرتا ہوں خان. سلام موسیٰ، تیار ہو جاؤ. تمہیں اور تمہاری بیوی کو پرسوں ہمارے ساتھ شمال جانا ہوگا. انشاءاللہ خیریت ہے؟ خیریت ہے. تمہاری بیٹی کی شادی ہے. مبارک ہو. مکھیا جی، کل صبح سویرے غلام رضا سے ایک بھیڑ لے کے سوراب کو دے دینا اس بکری کی جگہ. جی جی. خان، اگر اجازت ہو تو میں مکھیا اور موسیٰ کو بھی کھلاؤں. کیوں نہیں، ضرور یہ کام کرو. چلو آؤ، لو لو لیجیے. شکریہ. بہت شکریہ. اٹھا لو. ہوش ہوش چل چل ہوش 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 چل 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 ہوش 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 چل چل آ ہوش چل چل ہوش 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 چل چل چل. اوپر نہیں جاؤ، مہمان آئے ہیں. کون ہے؟ مکھیا. وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، 2 گھنٹے سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ شکر اٹھانا ذرا. یہ لیجیے ابو جان. نہیں مکھیا صاحب. اچھی طرح سوچ لو پھر جواب دینا. سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو. میں بے وقوف ہوں مکھیا صاحب؟ دیکھو میں صاف صاف کہہ دے رہا ہوں، اگر بہت تنگ کیا تو بندوق اٹھا کے تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے پیشانی کے بیچ ایک گولی خالی کر دوں گا. افسوس کہ میں مجبور ہوں، ورنہ تمہیں اپنے بندوں سے بول کر اتنے کوڑے لگواتا کہ منہ سے خون نکل آتا. اگر عقل سے کام نہیں لوگے تو خان تمہارا یہی حشر کرے گا. میں میٹھی زبان سے تمہیں سمجھا رہا ہوں. یہاں کس لیے بیٹھی ہو؟ ادھر آؤ. ان کو ابو سے کیا کام ہے امی؟ مجھے کیا معلوم. سکون سے رہو جب تک کہ مکھیا یہاں سے چلا نہ جائے. جاؤ اندر جاؤ. یہ تمہارے لیے سنہرا موقع ہے. اپنی قسمت کو لات کیوں مار رہے ہو؟ میری ہی بیٹی کیوں؟ محلے میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں. ان کو چھوٹی بچی نہیں چاہیے. ان کے بچے بڑے ہیں، اسکول جاتے ہیں. ان کو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک سمجھدار لڑکی چاہیے. انجینئر صبح سے رات تک گھر سے باہر رہتے ہیں. مرجان بیگم کو بھی ایک فرد چاہیے جو ان کی مدد کرے. اور بھی نوکر ہیں ان کے. وہ تمہاری بیٹی کے لیے بہترین جگہ ہے. یقین مانو تمہاری بیٹی خوش رہے گی. مرجان اور انجینئر دونوں عزت دار اور خاندانی لوگ ہیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہی طرح تمہاری بیٹی کا خیال رکھیں گے. اس کو 1-2 سال کے لیے جانے دو. دل نہیں چاہا تو واپس آ جائے گی. خود اس سے پوچھو، دیکھو کیا کہتی ہے. تمہیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. مرجان بیگم اور انجینئر دونوں ہی سخی لوگ ہیں. تمہارے گھر سے ایک کھانے والا بھی کم ہو جائے گا اور کچھ پیسہ بھی ہاتھ آ جائے گا. خوب سوچ لو، بعد میں مجھے جواب دے دینا. مکھیا میں نے سوچ لیا ہے، میری اور میری زندگی کا پیچھا چھوڑ دو.
मेरी बेटी सलाम। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? सलाम अम्मी जान। सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम। मूसा साहब आइए आइए आइए। सलाम। सलाम बेगम साहिबा। आइए। सलाम बड़ी बेगम इजाज़त हो साहिबा। तो खुश आमदीद। तशरीफ लीजिए। अच्छा तो चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा ने खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आखिरकार सोगुल की तैमूर से शादी हो गई। बेचारी गई थी, उसकी जान छूट गई। मुझे बेचैनी हो रही है। बकरियों को घर ले चलते हैं। फिर पहाड़ पर चलेंगे। चलें। हश हश। चल 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 हुश हुश। चल 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 हुश। सलाम। सलाम सूरी। दुनिया मवेशी को लेकर गई है क्या? बकरियों को वापस ले आई है, गुलबुता के साथ पहाड़ पर गई है। दुनिया दुनिया बेगम। सलाम मंसूरा खाला। सलाम। नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। मुखिया ने कहा है कि मैं तुमसे ये सब बातें कहूँ। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें अपने वालिद का ख्याल रखना होगा। मुखिया ने कहा है कि तुम्हारे वालिद बहुत परेशान हैं। कहा कि उनकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। मुखिया ने कहा कि तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि वो मर जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करेंगे। उन्होंने बाप होने का हक अदा कर दिया है, लेकिन तुम्हारा क्या फ़र्ज़ है? सभी जानते हैं कि तुम्हारे अब्बू तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन तुम क्या? अगर खुदा न खास्ता किसी दिन तुम्हारे अब्बू को गफूर की तरह कोई बीमारी लग गई तो उसका क्या अंजाम होगा? मुखिया ने कहा कि तुमसे बात करूं, अगर मान गई तो खान से तुम्हारे अब्बू के लिए ज़मीन मांग लेंगे। तुम आज तक शहर गई हो दुनिया? नहीं। यकीन करो, तुम्हारी जगह में होती तो यही कर। जाओ अपनी तकदीर संवारो, शायद मकसद तक पहुंच सको। यहाँ रहने से किसी का भला नहीं हुआ है। यहाँ से जाओगी तो छुटकारा मिल जाएगा, वहाँ जाओगी तो हज़ारों काम सीख लोगी। तुम्हारे इस काम से तुम्हारा भी भला होगा और वालिद का भी। तुम्हारे अब्बू को एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लेंगे। अगर तुम राज़ी हो गई तो तुम्हारे अब्बू भी ज़रूर राज़ी हो जाएंगे। मेरे अब्बू से पैसे और ज़मीन के बारे में कुछ ना कहें, वरना मज़ीद ज़िद पकड़ लेंगे। वो हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे कि इस तरह की चीज़ों की खातिर मुझे खुद से दूर करें। तुम्हारी क्या राय है? अगर मेरी खैर चाहते हैं तो मुझे जाने दें, दुनिया देखने दें। यहाँ रहकर कहीं नहीं पहुँच सकती। मैं तालीम हासिल करना चाहती हूँ। अभी तक उस पेन की हसरत जो आग में फेंका गया मेरे दिल में बाकी है। सिर्फ एक साल अब्बू जान। वादा करती हूँ अगर वो जगह पसंद नहीं आई तो मैं घर वापस आ जाऊँगी अब्बू जान। तुमसे किसने बात की? किसी से भी नहीं। उस दिन जब आप मुखिया से बात कर रहे थे तो मैंने खुद ही आपकी आवाज़ सुनी। आपने उनसे कहा कि अगर एक लफ्ज़ भी मज़ीद बोले तो पेशानी में गोली मार देंगे। इस बात पर मैं सुबह तक रोती रही।
میں نے خود سے کہا ابو میری خاطر انسان تک کو مار سکتے ہیں. میں جانتی ہوں، میں ان سب چیزوں کو جانتی ہوں. جانتی ہوں کہ آپ کی سانس مجھ سے جڑی ہوئی ہے. یہ بھی بتا دوں کہ میری جان بھی آپ کی جان سے جڑی ہوئی ہے. میں بھی تیار ہوں کہ آپ کے لیے جان دے دوں اور کچھ نہ کہوں. لیکن اگر میری مرضی چاہتے ہیں تو مجھے جانے دیں. کبھی کبھی آ کے مجھ سے مل لیا کریں. بس کچھ عرصے کے لیے مجھے جانے دیں ابو. یہ بالکل نئی ہے بیٹی، میں نے پہنی نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے امی جان. ارے مجھ سے بھی تکلف کر رہی ہو؟ نہیں ابو جان کی قسم. میں بھی تمہاری ماں ہوں. یہ تمہاری ماں کا ہار ہے، پشت در پشت تمہاری ماں تک پہنچا ہے، اب تمہارا. اور یہ لو پیسے. پیسے کس لیے ابو جان؟ اپنے پاس رکھیے. لے لو دنیا بیٹا. اوہ، اور کتنا دیں گے ابو جان؟ اس کو چھپا کے رکھو. آپ کے لیے دن اور رات کا کھانا بنا دیا ہے غفور پھوپھا. اپنا خیال رکھنا دنیا بیٹا. رکھوں گی پھوپھا جان.
मेरी बच्ची। अपना ख्याल जी अम्मी जान। मैं तुम पर वारी जाओ मेरी बच्ची। आप लोग किस लिए रो रहे हैं? ये जाएगी तो पहाड़ों से निजात मिल जाएगी। चाहो तो तुम भी साथ जाओ। भाईजान तुम पहले जाके बाल बनवाओ, भेड़ों जैसे हो गए हैं। अपना ख्याल रखना लड़की। जी अच्छा, भेड़ों के पास जा रहे हैं चचा जान। तो अपने लिए खाना लेते जाओ। जरा दुनिया का ख्याल रखना। दुनिया बेटी, मैंने खुसरो चचा से तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। अपना बहुत ख्याल रखना। जी अब्बू जान। ये मत सोचना कि अकेली हो। जब भी दिल घबराए आ जाना। 1 मिनट के लिए भी मत सोचना। जी अब्बू जान। चचा खुसरो को जो भी पैगाम दोगी वो मुझे पहुंचा देंगे। तो मैं बेफिक्र रहूं ना? जी अब्बू जान, बिल्कुल फिक्र ना करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जी अब्बू जान।